Okay, so now let us start with the first topic, okay, which is Sugeno inference system. Okay, I think we already discussed few parts in our theory lecture, but today we'll discuss this in detail. So the agenda of today's session is to complete the Sugeno inference system and Mamdani inference system and their problems, and then later on we'll see how we can solve all these examples using MATLAB also. So that same example will take using MATLAB, and we'll also verify whether we'll get the same answer or not. Okay, so let us start with the Sugeno inference system. Okay, so in both example, in both Sugeno and Mamdani, basically here we have given some input vector. Okay, so like here in this case you can see here we have given the input I1 and input I2. Okay, and both these inputs are basically a fuzzy membership function. Okay, they consider using fuzzy membership function. So basically the membership function corresponding to I1, okay, is given here. Okay, so this is the membership function corresponding to I1, where you can see it is actually a combination of three different membership function. One is L, denoted by, you can see this blue color. Okay, second is by M, uh, and third is by H. So in Mamdani also, whatever input is given, that input is actually a combination of three or four membership function, more than three membership function. So basically here I1 is also uh, basically I1 is a fuzzy set, and which is actually a combination of three membership function, which are L, M, and H. Okay, in a similar way that I2 is defined, and which is also a fuzzy set, and which is defined using the combination of three membership function like NR, FR, and VM. Okay, and that detailed information is already given in the graph, like uh, like what is the height. Okay, so here you can see the L membership function has height 1. Similarly, M membership function has height 1. H membership function has height 1 because of this. Similarly, here also the NR membership function has height 1 because this height is 1. FR membership function has height 1, and VF membership function has height 1. Okay, so I will tell you later on how we can read all these membership function. Okay, so basically in this case we have given two uh, inputs like I1, I2, and those inputs are actually a combination of three fuzzy sets. Okay, so just remember this part. Now let me read the further part. So so consider these two inputs, okay, which are actually the combination of three fuzzy sets. Okay, so so with this fuzzy set, we need to consider the following rules. Okay, so in every example, those fuzzy rules are already defined in the question itself. ये आप याद रखो कि कोई भी क्वेश्चन आने दो, जितने भी फजी रूल्स है, फजी रूल्स मीन्स कौन से रूल से आपको कैलकुलेशन करने वाले हो, तो वो सारे रूल्स आपको क्वेश्चन में ही गिवन रहेंगे, वो आपको मैन्युअली कंसिडर नहीं करने हैं, अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेशन करना है. तो रूल वन बेसिकली क्या गिवन है? सो हियर द रूल वन इज एक्चुअली if I1 is L, if I1 is L membership function, I2 is FR membership function, then we need to take Y as I1 plus 2I2. Okay. Similarly, rule 2 is when I1 is L membership function, okay, I2 is, sorry, I2 is V of membership function, then Y is equal to this, then Y is equal to I1 plus 3I2. Okay, just 1 minute. Let me just reopen that file again. There's something issue with it. Just 1 minute.
So yeah, let's start again. So basically, I can try whether I can open it through this window or not, because I need this file only. Yeah. Okay, is my screen visible now? Yes. Okay. Yes, sir. So the software may get crash in between. Yeah. So again, if I1 is L, okay. So basically, in both these examples, in Sugen also, in Mamdani also, okay, we have given two inputs. Those inputs are actually a combination of 3-4 membership function. Like I1 is actually a combination of 3 membership function. I2 is also combination of 3 membership function. Okay, which you will come to know from the graph itself. Okay, like here you can see I1 is actually a combination of 3 membership function L, M, and H, and I2 is actually a combination of 3 membership function which are NR, FR, and VR. And those inputs we need to consider with some fuzzy rules. So that rules are given. If I1 is L, I2 is FR, then Y is equal to I1 plus I2. Okay, this is the fixed rule that we need to consider. Similarly, I2 is what? If I1 is L, I2 is V up, then Y is equal to I1 plus 3I2. And if I1 is M, I2 is FR, then Y is equal to 2I1 plus 2I2. If I1 is M, I2 is V up, then Y is equal to 2I1 plus 3I2. So here you can see that I1 varies from L and M only. So here we have not considered the H membership function for I1, and that I2 is actually vary in between FR and VR. Okay, so these are some rules that those were given in the question itself. Okay, so not necessarily there are only 4 rules. Okay, in example, you may have more than 4 rules, like 6 rules. Okay, it depends on the given example. Okay. Now, okay, so next part is, so according to this rule, okay, we need to calculate the membership value at I1 is equal to 6 and I2 is equal to 2.2. ओके, तो जो आपको ये इनपुट कंसिडर करना है, उस इनपुट के लिए आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है. तो बेसिकली क्वेश्चन ये है, अगर आपका I1 6 है, I2 आपका 2.2 है, देन कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग आउटपुट Y. ओके, सो let us first calculate when I1 is equal to 6. Okay, then what are the values of membership function corresponding to 6. तो I1 equal to 6 आप ग्राफ में देखो, ये मैंने बाद में ड्रॉ किया है. तो I1 equal to 6, तो 5 के आगे आपको पता है 6 आने वाला है. ओके, अगर मैं 6 के करस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रॉ करता हूं, प्लीज फोकस ऑन दिस लाइन. सो अगर मैं 6 के आगे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यू विल कम टू नो that 6, okay, actually crosses the M membership function and L membership function. Okay, is this clear? When you consider I1 is equal to 6, and if you consider a straight line at x is equal to 6, okay, in the I1 for this set, so here you can see that this I1, this I1 is equal to 6 value basically crosses two membership function. One is M membership function and second is L membership function. So now our aim is to calculate the value at the value at M membership function and the value at L membership function. मतलब आपको ये पॉइंट कैलकुलेट करना है और आपको ये भी पॉइंट कैलकुलेट करना है, जिसका आंसर मैंने ग्राफिकली दे दिया है. ठीक है, सो M मेंबरशिप फंक्शन के लिए आंसर आपका है 1/5. अभी वो कैसे आता है वो आपको मैं नीचे दिखाता हूं. और L मेंबरशिप फंक्शन के लिए आपका आंसर आता है कुछ, तो आई डोंट नो व्हाट इट इज, 9/5 या 4/5 आई गेस, या 4/5. ओके, तो ये आपको एग्जाम में गिवन नहीं होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है. सो लेट्स डू दैट पार्ट फर्स्ट. ओके, हाउ वी कैन कैलकुलेट 1/5 एंड 4/5. ओके, सो नीचे आते हैं पहले. ओके, हाँ, सो फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट एट M. ओके, सो M के लिए अगर आप अच्छे से फोकस करते हो, ओके, हाउ वी कैन कैलकुलेट द मेंबरशिप वैल्यू एट M? कैन एनीवन टेल मी how we can calculate the membership value at M? सर लाईनचं इक्वेशन काढायचं 2 पॉइंट फॉर्मने आणि देन पुट करायचं. Correct. Okay.
तो बेसिकली ये जो आपका पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये लाइन कंसिडर करनी है फ्रॉम एस, फ्रॉम लाइक से दिस इज माय ए पॉइंट, ओके, दिस इज माय बी पॉइंट। तो बेसिकली आपको ए बी लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करना है, ओके। सो ए पॉइंट आपका क्या है? ए पॉइंट है आपका 5,0, x इज 5, y इज 0, एंड बी पॉइंट आपका है क्या होगा बी पॉइंट? सो दिस हाइट इज एट 10, so x is equal to 10 and height is 1, okay, and now you consider this as our x1, this is our y1, this is x2, this is our y2, and then we know the formula of equation of line passing from these 2 points. That formula is y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। मैं एक केस में आपको एक्सप्लेन करता हूं, then for the remaining case you can check those calculation, and ये फिर से रिपीट होने वाला है आगे आपका मंदानी में भी। सो जस्ट 1 मिनट, okay. So now what is y1? So y1 is 0, so y minus 0 upon x minus x1, so x is x1 is 5, so x minus 5, y minus 0 upon x minus 5 is equal to y2 minus y1, that is 1 minus 0, okay, whole divided by x2 minus x1. So 10 minus 5 is basically 5, so let me consider here 10 minus 5, then perform this calculation. So here you will get y is equal to this x minus 5 you can shift on the right hand side, so that become x minus 5 and whole divided by that number is 5. तो बेसिकली ए बी लाइन पे जो भी आपका पॉइंट होगा, ओके, लाइक अभी आपको x इक्वल टू 6 के लिए कैलकुलेशन करना है, ठीक है, जो भी आपका पॉइंट होगा उस केस में आपका आंसर क्या आने वाला है? उस केस में y की वैल्यू क्या होगी? x minus 5 by 5, बट आपको 6 के लिए कैलकुलेट करना है। सो व्हेन आई पुट x is equal to 6 here in this equation, you will get y is equal to 6 minus 5 by 5, that is 1 by 5. So that's why this height is, or this corresponding point is 1 by 5. So in this way basically we need to calculate those intersection points, and in a similar way now we need to calculate the intersection point at L. Okay, so L के लिए calculate करना है, तो here you can consider this line. So let me call it as this point as something say C. Okay, या आपके ऊपर आपको जो notation देना आप वो दे दो. So let me call it as this point as C, this point is D, and you can see that C has coordinates 5, 1, as because it is at the height 1, and D has coordinates 10, 0. Okay, and again calculate the equation of line passing through this point. Okay, so this is again my x1 y1, this is my x2 y2. So what is our equation? So let me follow this equation here. So y minus y1, so y minus y1 upon x minus x1, so x minus 5 is equal to y2 minus y1, that is 0 minus 1 upon x2 minus x1, that is 10 minus 5. Okay, this is nothing but y minus 1 is equal to minus in bracket x minus 5 upon 5, that 1 you can shift on RHS, so it is y is equal to 1 minus x minus 5 upon 5, that is basically because that minus minus become plus, so it is actually 10 because 5 minus x plus 5, so that will be 10 minus x divided by 5. So this is my y. Now calculate at 6. So at 6 it is 10 minus 6 at by 5, that is 4 by 5. So it's very easy. Okay, दो केस में आपको मैंने प्रॉपर कैलकुलेट करके दिया, एंड एट द एंड मैंने आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, both these topics are basically depend on how we can find the equation of a straight line passing through 2 points. ये जिसको आता है उसको ये 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसमें कहीं पे मिस्टेक हो जाते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो बेसिकली तो अभी आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है? सो फ्रॉम दिस द वैल्यू फॉर m मेंबरशिप फंक्शन है ना, m के लिए आपने कैलकुलेट किया था एट 6. ओके, क्या है वो वैल्यू? m के लिए वैल्यू आ रही है आपके पास 1/5, एंड सिमिलरली the value at L membership function is actually 4/5, and you can check below in the calculation that same calculation already I performed here. So for m that formula is there and value is 1/5. For L
that formula is there and value is 4/5. Now come so this is all about the I1 fuzzy set है ना, I1 जो आपका पहला इनपुट वेक्टर है. Now come to I2. Okay, so I2 के केस में आपको कहां पे कैलकुलेट करना है? So for I2 basically we need to calculate at 2.2. So 2.2 आप ग्राफिकली देखो so 2.2 आपका 2 के आगे आएगा. So basically that 2.2 line crosses two membership function. One is VF, ये VF को भी क्रॉस कर रहा है, और सेकंड इज व्हाट, FR को भी क्रॉस कर रहा है. तो बेसिकली आपको VF के केस में मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है लाइक से फ्रॉम पॉइंट A to B, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करना है. उससे आपके पास 2.2 के लिए आंसर आ जाएगा. उसके बाद आपको ये जो CD लाइन है इस केस में भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करना है. उससे आपके पास FR की मेंबरशिप वैल्यू आ जाएगी. सो दैट आई ऑलरेडी परफॉर्म इन अ सिमिलर वे जो जैसे आपने I1 के लिए किया है. सो लेट मी जस्ट शो यू दैट क्विकली. So in that case the value of VF is at 2.2 is actually 0.2, and that you can verify. You can verify your calculation, and for FR the equation is this and your answer is 0.8. Okay, तो ये फॉर एग्जाम्पल अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, सो 4 का जो कैलकुलेशन आपने किया है हर एक के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा. सो इट्स वेरी इजी. एट देन इस 10th 11th part, okay, how we can find the equation of straight line. So it's very easy. So just you need to calculate the correct values. Okay. Done. So now तो सुगेनो इन्फरेंस मेथड में okay, आपको पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन में I1 फजी सेट गिवन होगा, I2 फजी सेट गिवन होगा. ओके, जैसे इस क्वेश्चन में था. ओके, उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा कि I1 इक्वल टू एंड I2 इक्वल टू कौन सा वैल्यू के लिए आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है. जैसे यहाँ पे गिवन है कि I1 इक्वल टू 6 एंड I2 इक्वल टू 2.2 के लिए आप आउटपुट मतलब Y कैलकुलेट करो. सो I1 इक्वल टू 6 गिवन है, तो वो 6 पॉइंट के लिए ओके सारे मेंबरशिप वैल्यूज कैलकुलेट करो. तो यहाँ पे x इक्वल टू 6 जो लाइन है ओके इट क्रॉसेस टू मेंबरशिप फंक्शन, दैट्स व्हाई हियर यू विल गेट टू वैल्यूज, एंड 2.2 आल्सो क्रॉसेस टू मेंबरशिप फंक्शन, दैट्स व्हाई यू विल गेट टू वैल्यूज. ओके, फिर उसके आगे आपको जो रूल्स गिवन थे क्वेश्चन में वो सारे रूल्स आपको यूज करने, ठीक है. एंड ये सब कुछ आपको परफॉर्म करना है टेबल से, ठीक है. सो कम टू वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन दिस जर्नल. सो कम टू नाउ दिस टेबल. ओके, सो इसके आगे आपको एक टेबल कंसिडर करना है. टेबल में जो पहला कॉलम आपको लेना है ओके दैट इज वेट्स. ओके, WI आप यहाँ पे देख रहे हो. ओके, एंड सेकंड जो कॉलम लेना है वो है Y⁻I. ठीक है. हाँ, अभी सुगेनो इन्फरेंस सिस्टम से ओके आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है. So by Sugeno inference system, this is the actual formula from this theory. So by Sugeno inference system, your Y is equal to summation of WI by I upon summation of WI. ठीक है, ये आपका मेन फॉर्मूला है जिससे आपके पास आउटपुट आने वाला है फॉर अ गिवन इनपुट. आपको क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि व्हेन इनपुट इज 6, व्हेन इनपुट I1 इज 6 एंड I2 इज 2.2, कैलकुलेट Y. ये आपका एक्चुअली सुगेनो का क्वेश्चन था. सो दैट Y इज बेसिकली समेशन ऑफ WI YI upon WI. Now the question is how we can calculate that WI. ठीक है, तो उसके लिए आते हैं पहले. So जितने बेसिकली रूल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है उतने ही केसेस में आपका WI और Y⁻I आएगा. फिर से सुनो. ओके, जितने रूल्स आपको गिवन है ओके द नंबर ऑफ रूल्स दैट वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ ओके उतने ही आपको WIs और YIs कैलकुलेट करने. जैसे क्वेश्चन में मैंने आपको पहले रीड करके दिया था कि क्वेश्चन में यहाँ पे देयर आर 4 रूल्स है ना. इन दिस क्वेश्चन देयर आर 4 रूल्स, यू कैन चेक दिस. ओके, सो देयर आर 4 रूल्स एंड रूल 1 बेसिकली क्या है, I1 L है और I2 आपका क्या है, FR है. ठीक है, हाँ, एंड फिर Y आपका ये आता है. तो पहले I1 L FR. सो L FR मतलब ये एक मेंबरशिप फंक्शन आपको कंसिडर करनी है. ठीक है, सो नॉट दिस बेसिकली L मतलब ये. सो ये एक मेंबरशिप वैल्यू आपको कंसिडर करनी है बिकॉज I1 इज L. रूल 1 का कैलकुलेशन आप देखो कैसे हो रहा है. I1 L था इसलिए L की मेंबरशिप वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं. I2 FR है तो इसलिए FR की एक मेंबरशिप वैल्यू आप कंसिडर करो विच इज 0.8. ठीक है, ये रूल 1 के केस में L FR आता है तो आपका आउटपुट क्या है. इस केस में आपका आउटपुट क्या है, 2I1 प्लस 2I2. ओके, अभी आते हैं ये कैसे होता है नीचे कैलकुलेशन. ठीक है, सो L के केस में वैल्यू है 4/5
FR के केस में वैल्यू है 0.8। ठीक है, तो वही मैंने किया है जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है। ओके, सो वेट्स कैसे कैलकुलेट होता है, जस्ट टेक प्रोडक्ट ऑफ दोस मेंबरशिप वैल्यूज। तो हाउ यू कैलकुलेट WI, वेट्स आपका कैसे कैलकुलेट होगा, जस्ट टेक प्रोडक्ट ऑफ दोस टू मेंबरशिप वैल्यूज। तो ये जो आपका VL था 4/5 है ना, क्योंकि I1 यल था, तो उसके केस उस केस में मेंबरशिप वैल्यू क्या है 4/5, एंड I2 FR है, तो I2 के केस में सॉरी FR के केस में मेंबरशिप वैल्यू क्या है 0.8। Just take the product of 4/5 and 0.8. That becomes the weights of first rule. Okay. And how we calculate y? Y आपको क्वेश्चन में गिवन है, रूल में ही गिवन है। y आपका क्या था I1 plus 2I2। I1 आपको क्वेश्चन में गिवन है which is 6, I2 आपको क्वेश्चन में गिवन है which is 2.2। So I1 की वैल्यू क्या आएगी 10.4। So this is the calculation for rule 1. Okay, नहीं समझ में आ रहा तो एक और बार एक्सप्लेन करता हूं। Let's go for rule 2. So rule 2 में क्या होगा, अभी आप रूल 2 पे। ओके, इससे बहुत टाइम गया है। हाँ, सो रूल 2 के लिए मिनट है, स्क्रोलिंग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। सो रूल 2 के लिए, हाँ, सो रूल 2 के केस में I1 आपका यली है ना, और I2 की वैल्यू क्या है VF है। तो बेसिकली आपको मेंबरशिप वैल्यू एट L, ओके, मींस 4/5, और आपको VF का प्रोडक्ट लेना है। तो VF आपका क्या है, VF आपका है 0.2। सो जस्ट टेक द प्रोडक्ट ऑफ 4/5 into 0.2, दैट बिकम द वेट्स फॉर सेकंड रूल। ओके, एंड फिर आपका Y क्या होगा उस केस में I1 plus 2I2, where I1 is 6, I2 is 2.2। okay, in a similar way you can calculate values at rule 3, values at rule 4. That calculation is given. Okay. So so in this table that calculation is given. Okay, तो आप देखो रूल 1 का कैलकुलेशन है। ठीक है, रूल 1 में जो जो मेंबरशिप वैल्यूज आप कंसीडर कर रहे हो उनका बस आपको प्रोडक्ट लेना है। ओके, रूल 2 का कैलकुलेशन, रूल 3 का कैलकुलेशन, रूल 4 का कैलकुलेशन, तो ये सारे आपके आ गए वेट्स। So this is my W1, this is my W2, this is my W3, this is my W4। फिर करस्पॉन्डिंग आपको Y भी कैलकुलेट करना है। ये इजी होता है Y का कैलकुलेशन, क्योंकि I1 एंड I2 क्वेश्चन में गिवन होता है। I1 is 6, I2 is 2.2, उससे आपके पास Y1 आ जाएगा, Y2 आ जाएगा, Y3 आ जाएगा, Y4 आ जाएगा। आगे बस आपको करना क्या है, नाउ जस्ट टेक दिस समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वैल्यूज, मींस 0.64 मल्टीप्लाई बाय 10.4 प्लस 0.16 मल्टीप्लाई बाय 12.6। ये सब आपको बस प्रोडक्ट करते जाना है। ओके, सो ये आप देखो, सो हाँ, तो इसके आगे 0.64 मल्टीप्लाई बाय 10.4 प्लस ओके 0.16 मल्टीप्लाई बाय 12.6। नेक्स्ट इज 0.16 मल्टीप्लाई बाय 16.4, ओके, एंड 0.04 मल्टीप्लाई बाय 18.6। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या था, समेशन ऑफ WI। सो जस्ट ऐड दीज नंबर्स, 0.64, 0.16, 0.16, 0.004, okay, and it gives you the answer as 12.04। So basically when input I1 is 6, I2 is 2.2, आपका Y क्या था 12.04। This is the output using Sugeno inference system। ठीक है, तो अभी मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूं, बट आपको एग्जाम में ये याद रखना है, आपको एग्जाम में इसमें बस क्या क्या चेंज होगा, रूल्स में भी डिफरेंट, दोज रूल्स में भी 4, दोज में भी 6। जितने रूल्स आएंगे उतने ही वेट्स आपको कैलकुलेट करने, उतने ही वाईआईज आपको कैलकुलेट करने। सो रूल्स पे रूल्स से इतना कुछ इशू नहीं आएगा। I1 I2 ये आपको सारे एग्जाम्पल में एक फजी सेट गिवन होगा। हर एक फजी सेट बेसिकली 2-3 मेंबरशिप फंक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, एट मैक्स 3 या 4 मेंबरशिप फंक्शन उसमें जनरली रहेंगे। जैसे I1 में 3 मेंबरशिप फंक्शन है, L, M, H, बट रूल्स में जितने गिवन है जैसे रूल्स में L और M ही गिवन था, ओके, और I2 के केस में FR और VF ही गिवन था, इसलिए मैंने दोनों केस में ही कैलकुलेशन किया है। ओके, और वो मेंबरशिप फंक्शन का कैलकुलेशन भी डिपेंड है कि आपको कौन से वैल्यूज के लिए कैलकुलेशन करने। जैसे कि मुझे 6 के लिए कैलकुलेट करना था, इसलिए 6 जिस मेंबरशिप फंक्शन को क्रॉस हो रहा है मैं उतने ही कंसिडर कर रहा हूं। 2.2 जितने मेंबरशिप फंक्शन को वो क्रॉस कर रहा है मैं उतने ही कंसिडर कर रहा हूं। रिमेनिंग केसेस में कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द Sugeno inference system। एनी डाउट्स इन दिस मेथड?
पहले डाउट्स लेते हैं फिर मैं नेक्स्ट मेथड पे आता हूँ. सर हाँ यस सर जी आयची व्हॅल्यू आहे सपोज I1 आहे हाँ तर ती तिन्ही मॅपिंग आहे त्याची तिन्ही पण फजी सेट्स आहेत ती त्यांना क्रॉस करू शकतो का नाही 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 करणार. सपोज I1 ची व्हॅल्यू 10 असेल तर सर किंवा अशी कोणती व्हॅल्यू जी नाही नाही हा, नाही देणार कारण त्यात आली तरी आहे ना त्या दोन केसमध्ये व्हॅल्यू इक्वलच येऊन जाईल ना. इंटरसेक्शन पॉईंट जर सेम असेल त्यांचा तर ओके पण तसं येणार नाही तुम्हाला. ऍक्च्युली आहे ना जनरली जो I1 I2 जो येईल ना तुम्हाला तो कधी पण अशा इंटरसेक्शन मध्ये नसेल. म्हणजे इट विल नेव्हर इक्वल टू 5, इट विल नेव्हर इक्वल टू 10, इट विल नेव्हर इक्वल टू 15. ओके यस सो इंटरसेक्शन पे नहीं आता ये जनरली. ओके क्योंकि जब वो क्रॉस करेगा ओके आपको ये क्लियर इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन से मेंबरशिप वैल्यू को वो क्रॉस कर रहा है. ओके उसमें अगर फजीनेस आ जाता है कि वो लाइक अगर 10 पे वो यल को भी क्रॉस कर रहा है एच को भी क्रॉस कर रहा है सो दैट इज नॉट बेसिकली वी आर कंसिडरिंग. ठीक है. So if such a case is there, we need to change the membership function range. है ना? In that case, instead of 10, we can start that h from say 9.5. ये आपके हाथ में है ना कि आपको membership function क्या लेना है. So basically we avoid this. We don't want the input values at the intersection point. Okay? Yes. और 100% सारे एग्जाम्पल में ये दो मेंबरशिप वैल्यूज को ही क्रॉस करेगा. ठीक है ये आप याद रखो. तो इसलिए वो इंटरसेक्शन प्रॉपर कैलकुलेट करो. जिसको वो क्रॉस कर रहे हैं उतने ही रूल्स में गिवन रहेंगे. आपको दिखाई दे रहा है I1 कौन से वैल्यूज को क्रॉस करा, यम को क्रॉस करा, यल को क्रॉस करा, इसलिए यल और यम के ही रिजल्ट्स थे. ठीक है. रिमेनिंग केस में वैसे भी कैलकुलेशन नहीं होगा. एंड यहाँ पे 2.2 आपका FR और VF को क्रॉस करा था इसलिए ये गिवन था. Okay, in this case, I may ask the I2. I may consider I2 as say 1.1. So in that case, it will cross NR and FR. है ना? इन दोनों को वो क्रॉस करेगा. अगर मैं 1.1 इस लाइक पॉइंट पे कहीं पे लेता हूं तो ठीक है. Any other doubts from Sugeno inference system? ये कंपल्सरी क्वेश्चन है एंड it's very easy. Okay, and then that whole calculation is depend on that one table जिसमें आप weights और y कैलकुलेट कर रहे हो. जो आपका आंसर आता है ओके इट विल ऑलवेज लाइज इन दी रेंज ऑफ I1 एंड I2 की जो रेंज है उसमें ही वो आंसर रहेगा. मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हाईएस्ट रेंज है 0 to 15. I1 I2 आपके दोनों फजी सेट 0 to 15 रेंज में कवर हो रहे इसलिए आंसर आपका 0 to 15 में ही रहेगा. एंड दैट आंसर यू कैन सी इट इज 12.5. ओके इट विल नॉट गो बियॉन्ड योर 15. ओके तो इसलिए कैलकुलेशन की एक रेंज आप डिसाइड करो. ओके हियर दिस कैन सी दिस आंसर इज 12.4. ठीक है क्योंकि 0 to 15 रेंज में ही आपके दोनों इनपुट्स थे. आपका I1 भी था और आपका I2 भी था. तो आंसर इस रेंज में ही आएगा. तो ये भी स्मार्टली आप हैंडल करो कि आंसर अगर रॉन्ग आता है तो समथिंग मिस्टेक समथिंग is mistaken in your calculation. तो वो आपको आइडेंटिफाई करके आगे जाना होगा. ओके सो is there any other doubt? बोलो जल्दी. Many things we need to cover. Yes. Okay. ठीक है. So